Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today is 18th of June. One more day has gone and exam has come one day near. Now how to plan our things and how to execute our things for sure success in examination. Every year examination season comes and after the result few candidates gets the job, their life is changed, they start new journey in life. And still lakhs of candidate, they lose out and they look for the reasons why they lose out. Some of them are able to figure out the reasons and others still remain confused what is to be done. So in this series of sure success, I will be discussing some aspects. If you take care, you can be successful and improve your score drastically or fantastically. Now, what is more important? The important is, are we planned or we are unplanned? The most people, they live the life that is unplanned. The day starts, the day ends, and the next day starts. But very rarely people are able to plan the day and do the activities as per their desire, and that is very crucial for success. So what you should do, first of all, you should list out the type of activities that is to be carried out by you today. List out all activities, maybe small activity, maybe big activity, make a list of it. And now out of these activities, you should look for the activities that can be avoided or that can be postponed for next day, for next 2 days, for next week, or even for a month. Now you should have a very clear vision that these are the activities that is to be done and these are must. Try to squeeze time for each activity. If you feel I have to visit a market to buy something, can it be done through some other mode and save time? Even if I have to visit someone, can that trip can be shortened? Can some activities be avoided? So that means you must manage your time. Time management is essence of success. So first of all, you should work on your time management. Take out the time from those activities that is draining your time. If you are watching reels, reduce that time. If you are actively engaged in social media, reduce that time. If you are wasting your time in gossip, reduce that time. If you think and think, waste lot of energy only on thinking instead of doing activities, reduce that time. So you should shrink the time on those activities that is not so productive from the examination point of view. And you should aggregate this time saved for your studies. That means now for next 59 days, your entire focus should shift to your studies and to crack the examination by hook or crook. Once we say hook and crook, does not mean by unfair means. Hook and crook here we mean all cylinders must be used towards single goal, that I will study, study, study
and I will gain knowledge on daily basis. Then after saving this time, now you should plan your activities for the day and make your own timetable. What should be model timetable? We are discussing that through our various videos of timetable. Yesterday also I posted 2-3 videos on that. Watch those videos, that will give you insight. So plan your day. How much time you will devote to a particular subject like English, maybe quant, maybe reasoning, maybe current affair, maybe banking. So segregate your time. Make a clear cut timetable that from this hour to this hour I will do this activity. From this hour to this hour I will do this activity. Because once we define some activity, we will be able to complete that activity. And the moment we complete the activity, we gain something at regular interval. And gaining knowledge at regular interval always adds to our knowledge, and we become knowledgeable after every hour, we become knowledgeable after every day. That is very crucial and important for a person who is in competition, because if I am preparing, my competitor is also preparing. So if I am more organized than my competitor, then only I can beat. So saving your time on the activities those are not so productive from study point of view, that should be your mission today. Try this. If you find some difficulties, you can put a comment. I will try to cover those aspects in coming days. There are a lot of advisory videos on this channel. Watch these videos and plan your day. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज 18 जून है, एक और दिन निकल गया और एक और दिन कम हो गया एग्ज़ाम की तिथि से. आने वाले 59 डेज आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दिन है. हर साल लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं. उसमें से कुछ हजार लोगों को सक्सेस मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है और उनका जीवन बदल जाता है. लाखों लोग फिर उसी रेस में दोबारा शामिल हो जाते हैं. ये जो रेस है, इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है और कैसे मुझे कामयाब होना है, इसके लिए हम ये श्योर सक्सेस सीरीज़ आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ बातें जो छोटी हैं मगर महत्वपूर्ण हैं आपको समझाएंगे. और अगर आप उनको लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार आना शुरू हो गया. कुछ लोग अपनी पढ़ाई करते हैं जो प्लान्ड होती है, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं जो अनप्लान्ड होती है. दिन शुरू होता है, दिन बीतता जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है, अगला दिन फिर शुरू हो जाता है और हाथ पल्ले हमारे कुछ नहीं लगता. कुछ लोग होते हैं हर मिनट को यूटिलाइज करने में कामयाब रहते हैं. ऐसा कब होता है? जब हम प्लान्ड होते हैं, जब हम एक योजनाबद्ध होते हैं और उस योजना को बनाकर आगे चलते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज आप ये एक लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी लाइंड अप है आज आपके लिए. छोटे से छोटा काम आप उस कागज़ पे लिखिए या मोबाइल में लिखना चाहें, नोट्स पे, जो भी आपका तरीका है, इन सब एक्टिविटीज़ को लिखिए. इन एक्टिविटीज़ को लिखने के बाद आप देखिए इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कल के लिए, अगले 3 दिन के लिए, अगले सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. क्योंकि जब आप पोस्टपोन करेंगे तो जो उस पर लगने वाला वक्त है वो आपका बच जाएगा और वो वक्त अवेलेबल हो जाएगा किसी अन्य काम के लिए. तो पहला काम आपने ये करना है कि जो आप आज करने वाले थे उनमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है, जिनको अगले
दिन अगले सप्ताह या अगले महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो भी वो एक्टिविटी है उसमें जो टाइम लगना है, मान लो किसी काम में 20 मिनट लगने हैं, क्या उस काम को मैं 10 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ? कोई उसका अल्टरनेटिव है? मान लो मुझे मार्केट जाना है, क्या मैं अन्य साधन से वो चीज़ मंगा सकता हूँ? अगर मार्केट जाना है तो अगर मैंने आधा घंटा वहाँ लगाना था, क्या मैं 10 मिनट में उस काम को पूरा कर सकता हूँ? या मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, क्या मैं वो टाइम कम कर सकता हूँ? क्या जो मैं रील्स देखता हूँ उसका टाइम मैं रिड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं जो गप्पे मारता हूँ उसका टाइम मैं रिड्यूस कर सकता हूँ? जो मैं दोस्तों से मिलता हूँ, क्या मैं वो टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ? जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर श्रिंकेज ऑफ टाइम कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आपको विचार करना है और उसको रिड्यूस करना है। तो जिस जिस एक्टिविटी से आप टाइम बचाते जाएंगे, वो सारा टाइम जो अवेलेबल टाइम है आपने अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना है। अननेसेसरी थिंकिंग नहीं करनी है और सोच सोच के अपने वक्त को जाया नहीं करना, क्योंकि सोचने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, काम करने से आप आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि कुछ मिनट लगा के पहले प्लान करना है। प्लान करने के बाद जहाँ जहाँ टाइम आप बचा सकते हैं उस टाइम को बचाना है। फिर आपने एक निश्चित टाइम टेबल आज के लिए क्रिएट करना है। कैसे टाइम टेबल बनना चाहिए, हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस के जरिए गाइड कर रहे हैं। वो एक मॉडल टाइम टेबल है, उसको आपको अपने अनुसार ढालना है। कितना टाइम आप इंग्लिश को देंगे, कितना टाइम आप क्वांट को देंगे, कितना टाइम आप रीजनिंग को देंगे, कितना टाइम आप करंट अफेयर को देंगे, कितना टाइम आप बैंकिंग को देंगे, ये आप निर्धारित करेंगे। इस टाइम को निर्धारित करने के बाद ये कहाँ से करेंगे, कितने टॉपिक टेस्ट करेंगे, कितने सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे, कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे, स्पीड ड्रिल करेंगे, जो भी आपको करना है, कोई वीडियो क्लास अटेंड करनी है, जो भी करना है उसकी एक फुल फ्लैश प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंसियर एफर्ट्स करेंगे। अगर आप कुछ भी गेन करते हैं हर घंटे में, कुछ भी गेन करते हैं प्रतिदिन, आप रोज नॉलेजेबल होते जाएंगे और एक दिन वो आएगा जब आपका लेवल उससे बहुत आगे निकल जाएगा जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अधिकांश लोगों की टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है और ना वो प्रयास ही करते हैं टाइम को मैनेज करने का, और वक्त पे वक्त गुजरता जाता है क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, क्योंकि तिथि तो निश्चित हो चुकी है ना, ये टाइम उड़ जाएगा। कल रात को भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको ध्यान से देखिए। कल और भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जो भी लोग IBPS PO, IBPS SO या कोई भी एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं ब्रॉडली IBPS PO की बात कर रहा हूँ, पर कोई भी एग्ज़ाम जो फोकस कर रहे हैं उसके लिए आपको प्लान करना है, प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वक्त कहाँ से बचाना है, टाइम को मैनेज करना है। जितना टाइम आप बचाने में कामयाब होंगे, जितना टाइम का सदुपयोग करेंगे, जितना वक्त को से अधिक नॉलेज को निचोड़ने की कोशिश करेंगे, आप कामयाबी पे बढ़ते जाएंगे। जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और ऐसी ऊल झलूल कामों के अंदर वक्त बर्बाद करते चले जाते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं। सबसे बेशकीमती चीज़ है व्यक्ति का वक्त, टाइम, जो लौट कर नहीं आता। उसको बचाना, उसको सदुपयोग करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे हैं, बहुत सक्सेस वीडियोस इस चैनल पे हैं, बहुत टाइम टेबल वीडियोस इस चैनल पे हैं। उनको देखिए, उससे सीखिए। अगर कोई भी उलझन आपके मन में है, आप कमेंट कॉलम में डालिए, उसके भी सलूशन हम आने वाले दिनों में आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का हमारा क्रक्स है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इसके कुछ आयाम मैंने इसमें वीडियो में बताए हैं। कुछ बातें मैंने जो रात को वीडियो डाली थी उसमें बताई है, उसको भी ज़रूर देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।